dear students and faculty members. The session is designated to only mechanical engineering students as well as mechanical engineering faculty. This is a new experiment we are starting from today. The session name is the technologies of the future and recent development in engineering and technology. The aim behind this is that we are studying some our YMCA regular curriculum. Sometimes our syllabus is such that this is not including the latest technology what is happening in the world, like electric cars. I am giving an example that electric cars are there in the world. In USA, the Tesla Motors, the Elon Musk CEO, they are getting a reputation. A lot of sale is there of electric cars, but still in our curriculum, regular curriculum, we are not reading, we are not studying about the electric cars. What is the reason behind that? Because our curriculum is designed in such a way that we lag, that is the fact. We lag behind our latest technology by around 10 years. After 5 years or 10 years, when the electric cars will be commercialized in India, then we will be able to see the syllabus for that also. But as an engineer, we should know what is happening in today's scenario in the world. For that, and also the future technology, what is coming to be, what may happen in the future, like Hyperloop. Hyperloop is a concept which is nowhere there nowadays, but in future, in 5 years or 10 years, you will see the Hyperloop trains, right? That is so fast that you can go from Kashmir to Kanyakumari in 1 hour, right? So the future technology and the latest technology what is happening in the world and India, that should be the student should be aware about that. And based on this concept, we have started this session, a series of session for which this is the first episode. And again, I am naming the session technologies of the future, that what may happen in the future in near 5 years or 10 years, and recent development and engineering and technology, that what are the recent technologies in engineering and technology nowadays taking place, right? Our main emphasis will be on mechanical engineering, but because some of the students go to computer science, coding, mobile, computers, so there may be some students may be aware about that technology and they can share their knowledge. So the concept is that because students of the final year and other students of the branches are aware about the latest technologies, what is happening, the students are in industrial training, they see there what is the latest technology going on there. So the concept is that students should give their knowledge, share their knowledge to other students, their colleagues, and also to the faculty members. So this is the concept behind this series of the future technologies and recent advancement in engineering and technology. So this is a great initiative taken by the first session taken by the Ashish Goel and Mahir. I suggested them to give the first session. They immediately accepted that yes, we want to give the session, so that a start may take place. And a start is difficult. Later on, it is very easy that in the future we can do more episode of this when students come forward and tell that I have this knowledge and I can share this knowledge with the students. So for the first two students come forward to share their knowledge. I am thankful to the two students, Ashish Goel, this is 8th SEM student, and this will deliver his session on earthquake proof maglev houses. So magnetic levitation concept will be used here, and he will convey his knowledge, share his knowledge to the students. And the second session will be with Mahir Mower. Mahir Mower is the 4th SEM student. He come forward to give to share his knowledge, and he will give. He is highly interested in defense sector, so he will give the latest technology in Indian defense sector. So these will be the two topics for today's session, so that the students must aware about the latest technology. In future, I will request other students also that come forward
whatever knowledge they have about the latest technology, even faculty or students as well, and they should share their knowledge with their colleagues as well as their juniors and seniors and so on. So now I will request, the session will be very short. It is not long session because our aim is to just make you aware about the what is happening in the world in the latest technology and what may happen in the future. Right? It is not a detailed session, not a theory or anything session, just awareness sessions there. So session will be short, and now I will request Ashish Goel to uh, to on his audio as well as video and start the session on the earthquake lab make analysis, right? So Ashish Goel, you can start now. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Ashish Goel from Mechanical 8th Sem. Today, I'll be informing you about the earthquake-proof magnetic levitated houses. So, if you earthquake don't kill people, people houses in the midst of earthquakes kill people. If you look at the facts and photographs, you will know that majority of the fatalities during earthquakes occur due to the buildings or the parts of building falling over the people. So what is better way to avoid this tragedy rather than to toss your houses in amidst the air during an earthquake? No contact, no disaster. Simple. The creator of the hoverboard wants to make your houses float. Yes, you heard me right. Floating houses. Greg Henderson, the co-founder and CEO of ArcSpecs, the company behind hoverboard technology, has revealed that the magnetic levitation, electromagnetic hoverboard technology may be the future of earthquake-proof houses. Hoverboard works on the principle of magnetic levitation. For better understanding, let us first understand what is magnetic levitation. So magnetic levitation, or briefly called as maglev, is a method by which an object is suspended in the air with no support other than the magnetic fields. Magnetic force is used to counteract the effects of any gravitational acceleration or any other acceleration. During an earthquake, the main danger to a building structure is lateral or sideways movements. The present earthquake proofing technology in the present system decouple buildings from the ground by using base isolation bearings so that they can move freely without compromising the building's integrity. But their company ArcSpecs currently holds package for patents for a brief buffer system that uses water and gas to raise homes, protecting them from destructive lateral movements. But Henderson's new system would rely on electromagnetics to produce repulsive magnetic forces to lift the house. The house will be linked to United States Geological Survey's Shake Alert system, allowing it to activate the electromagnetic hover up to 90 seconds when an earthquake is detected by that system. The Shake Alert system relies in a series of sensors placed near fault lines of earthquake prone areas has already proven effective and give the residents of those areas a head start on incoming earthquake. But two major problems are being encountered by the researchers. These are lifting forces and secondly stability. So let's talk about the lifting forces first. Lifting forces provide an upward force sufficient to counteract the gravity. We know that opposite poles of a magnet attract each other and the like poles or same poles of a magnet repel each other. But these repelling forces depends on the magnetic field and the size of the magnet. So the question is it possible to produce such strong magnetic field that can lift up an entire house
and also these strong magnetic fields will not cause any harm to the biorhythm of human bodies. And as far as second, the stability of the system is concerned, then the problem is that when we lift with two simple dipole magnets, repelling is highly unstable. The top magnet can slide sideways, or it can even flip over. So it turns out that no configuration of magnets can provide stability. However, servo mechanisms, use of diamagnetic materials, superconduction, or systems involving eddy currents has proven effective to achieve stability to some extent. But as soon as these two problems are resolved, then congratulations, you will be able to sip tea or coffee with your family members during an earthquake without even noticing it. So that's all for today, ladies and gentlemen. Engineer Ashish Goel here seeks your permission. Thank you. Yeah. So now I will invite Mahir. Mahir, you are there? Yes, sir. Uh, now I will invite Mahir to give his session on Indian defense sector. What is the current scenario? What is the latest technology in the on the Indian defense sector? So you can start, Mahir, now. Good afternoon, everybody. My name is Mahir Muwar. I am from Satyug Darshan College, mechanical. I am mechanical student from fourth semester. Today, I am here to share some important information about the latest technology and upcoming projects and deals in Indian defense sector. And I'm also going to share the importance of indigenization and problems occur to and that what we have to do to achieve it. So I will start with an example that we all know. Israel got its independence in 1948. तो उसके बॉर्डर इश्यूज की वजह से जो वहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उसका वहां से राइवलरी बहुत बढ़ती चलेगी, जैसा आप सब जानते हैं. तो जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी सारी नॉलेज और अपनी इकोनॉमी का पूरा 5% जो जीडीपी का होता है वो डाला अपने उसमें डिफेंस सेक्टर में, और आज वो उन्हें अपनी जो राइवल जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ उसे एज मिल रखी है, क्योंकि उसके जो जितने भी वेपन्स हैं वो सारे नेक्स्ट जनरेशन के हैं. दैट्स उन्हें वहां पे एज मिल जाती है. तो अगर यही चीज इंडिया भी अचीव कर लेता है इंडिजनाइजेशन करके, क्योंकि उसने अपना सारा फोकस अपनी नॉलेज एक पर्टिकुलर सेक्टर पर डाली ताकि वो उसको अच्छे से मॉडर्न कर सके और अपने राइवल कंट्रीज पे एज ले सके. अगर यही चीज इंडिया करता है, इंडिजनाइजेशन करता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमारी मतलब पावरफुल नेशन के थ्रू स्टैंड होंगे, जो कि अभी भी है, पर वो जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा. दूसरा है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी. जैसे कि अगर हम लोग बाई चांस मान लेते हैं हम हमारे कोई फाइटर जैसे तेजस है, तो हम तेजस को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी. तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जैसा कि एक एयरक्राफ्ट होता है तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख पीसेस से असेंबल कर मतलब उन सबको जोड़ने के बाद एक फाइटर जेट बनता है. तो 10 लाख पार्ट्स अकेली एक कंपनी बना नहीं सकती है. तो इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज होंगी, उन सबको मौका दिया जाएगा कि वो उसके लिए पार्ट्स बनाए. उस थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज में लाख ऑफ वर्कर्स होंगे, तो उन सबको उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो आजकल दिक्कत है वो थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी. और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी का. तो होता ये है कि बाई चांस मान लीजिए एक पूरे कोई भी एक्स कंट्री है, उसकी एयरफोर्स में 100 जेट्स हैं. तो होता क्या, अगर हम किसी भी एक इंस्टेंट पे बोले कि अभी कॉम्बैट सिचुएशन है और हमें अभी जेट्स अवेलेबल चाहिए, तो हमें मुश्किल से मुश्किल 60 मिलते हैं. तो ये अवेलेबिलिटी रोड से दिखाता है कि 60 अवेलेबल होंगे कोई भी कॉम्बैट सिचुएशन में, अगर हम उठा के देखते हैं तो. और यही अगर हम इसे खुद से बनाने लग जाए तो हम इसे अपने आप ही, क्योंकि बाकी जो 40 जेट्स होंगे वो मेंटेनेंस में रहेंगे हमेशा. कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि कोई भी, चाहे कितना भी डेवलप नेशन क्यों ना है, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, या फिर फ्रांस हो, या यूरोपियन यूनियन में और भी कोई कंट्रीज हो, तो उनकी भी अवेलेबिलिटी रेशो 70 to 80 रहती है, क्योंकि वो खुद बनाते हैं. जब उनकी 70-80 है, जब वो खुद बना रहे हैं, और कोई बंदा किसी और पर डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी 60 रहेगी. तो इसी चीज को अगर हम गैप को थोड़ा और कंप्लीट कर पाएंगे इंडिजनाइजेशन के थ्रू. और इसके बाद आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है इंडिजनाइजेशन में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि एचएएल जो है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसकी मोनोपोली बन रखी है हमारे इस देश में. तो इधर क्या होता है, जो जितने भी लोग होते हैं ना, वो 10 to 5 तक की जॉब सोच के आते हैं, उसमें उन्हें बस अपना काम करना होता है, चले जाते हैं.
आप देखते होंगे कि मेजर जो वो हो रही है जितनी भी अचीवमेंट वो डीआरडीओ करता है, क्योंकि वहां पे वो सारा फोकस अपना देश की प्रगति में लगाते हैं, ना कि ऐसे 9 10 to 5 जॉब सोच के। तो होता ये है कि अगर हमारे प्राइवेट फर्म्स आ जाती हैं डिफेंस सेक्टर में, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन का हमेशा ये रूप होता है, कोई भी दो कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता है तो उसका फायदा कंज्यूमर को होता है। एग्जांपल लेता हूं मैं कि 1980s में नॉर्थरॉप गनमैन ग्रूमैन और एक लॉकहेड मार्टिन कंपनी थी, तो वहाँ की जो अमेरिकन एयरफोर्स थी उन्होंने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया कि हमें ऐसे ऐसे, उन्होंने स्पेसिफिकेशंस बता दी कि हमें ऐसा जेट चाहिए, और गवर्नमेंट ने उन दो कंपनीज को बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारे लिए एक जेट चाहिए, तो प्रोटोटाइप बनाइए। तो उन्होंने दोनों कंपनीज ने क्या किया, अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया। तो लॉकहेड मार्टिन ने F-22 रैप्टर पेश किया और जो नॉर्थरॉप गनमैन थी उन्होंने F-23 पेश किया। तो आज उन दोनों की वो कंपटीशन की वजह से वर्ल्ड को अपना सबसे बेस्ट फाइटर जेट मिल चुका है, जो कि 5 जनरेशन का है, 5 जनरेशन का, जो कि सबसे स्टेल्थिएस्ट जेट माना जाता है F-22 रैप्टर। तो किसी के कंपटीशन की वजह से किसी को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिले तो वो अच्छा रहता है। तो यही चीज अगर इंडियन इंडस्ट्री में भी होगी, डिफेंस इंडस्ट्री में, तो इससे होगा कि जो अगर दो प्राइवेट फर्म होंगी तो वो अपना बेस्ट देंगी, तो बेस्ट देने से होगा क्या, इंडिया को अच्छा वेपन मिलेगा, हो सकता है इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को भी अच्छा वेपन मिल जाए इस चीज से। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस इसमें ये भी आता है कि फंड्स की बहुत कमी होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2000 में नेवी ने अभी वो SSK क्लास की वो डीजल इलेक्ट्रिक शिप मांगी थी, वो सबमरीन मांगी थी उसके लिए। तो अब जाके अभी रिसेंटली विद इन अ वीक अब जाके हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसे वो किया है कि हाँ अप्रूव किया है अब जाके। और सोचिए इसको फिर अप्रूव होने के बाद जिन जिन देशों से ली जाएगी उसके बाद उसमें 10 साल लग जाएंगे, तो कहीं 15 20 साल बाद जाके वो 6 से पाएंगे, तो उसमें पूरा कितना ज्यादा टाइम लग चुका है इस चीज में। तो यही है कि फंड्स की कमी होती है। एक तो अगर डीआरडीओ को और फंड्स मिले और अच्छे से मिलती जाए, उन्हें फंड्स की कमी ना हो, तो वो भी अपनी तरफ से और अच्छा अच्छा करती चले जाए, या और भी प्राइवेट कंपनीज को और तो मिले, तो इससे वो अपना बेस्ट दे पाएंगी। अब दूसरे आते कि मैं आपको अब ना जो अभी करंट सिनेरियो में जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। सबसे पहला आता है तेजस। तेजस 1950 का प्रोजेक्ट है। इसकी 2001 में फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और 2015 में इंड्यूस हुआ था, यानी कि पूरे 65 साल लग गए इसकी वो पूरी डेवलपमेंट फेज से लेके फर्स्ट फ्लाइट टू इंडक्शन में। तो 65 साल लग गए, तो सोचिए 65 साल में मतलब जितना भी गैप था वो आज की टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर पाएगा, ये सब मानते हैं। तो इसलिए अभी उसके नए वेरिएंट्स पे काम चल रहा है, जैसे कि अभी जनवरी के टाइम में ही तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 84 तेजस मार्क 1A जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है उसका ऑर्डर दिया है। और अभी तेजस मार्क 2 उस पर काम चल रहा है, ये उसका भी बेटर वेरिएंट है। जैसे कि F-16 है, तो F-16 अमेरिका का बेस्ट फाइटर जेट भी माना जाता है 4th जनरेशन के मामले में। तो वही उससे भी बेहतरीन फाइटर जेट हम अभी तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, जो कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को मायने रखते हुए इस चीज पे काम चल रहा है तेजस मार्क 2 पे। तेजस मार्क 2 में जैसे कि ये 2024 टू 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। इसमें जो हमारा रेडार होगा, जैसे मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारा तेजस जो फाइटर जेट है उसके अंदर 65 साल का टाइम लगने के बाद भी 60% हमारा पार्ट है और 40% फॉरेन पार्ट है। 40% में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि जो इजेक्शन सीट हो गई वो अभी इसराइल की है, और जो रेडार है वो भी इसराइल का है, और जो उसके अंदर इंजन है वो अमेरिका का है। अभी तेजस मार्क 1A में भी थोड़ी अपग्रेडेशन हुई है, 60 से थोड़ा प्लस हुआ है, लेकिन आने वाले जितने भी साल में जब तेजस मार्क 2 आएगा तो उसके अंदर जो इंजन होगा वो अभी उसका होगा जनरल इलेक्ट्रिक का, अमेरिका की कंपनी है। F414 इंजन लगेगा उसके अंदर। रेडार हमारा होगा, एवियोनिक्स हमारा होगा, बस एक थोड़ा हेलमेट होगी, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले जो है वो इसराइल की -5 होगी, वो मिलेगी। और आगे आते आते हम इसे अपने इंडियन इंजन से भी रिप्लेस कर देंगे, तो मतलब ये होगा कि 100% में से 90+% जो होगा उसके अंदर इंडिजिनस पार्ट होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा TED-BF। आजकल आप लेटेस्ट सुन रहे होंगे कि जो हमारी नेवी है वो अपने MiG-29 जो यूपीजी वेरिएंट के फाइटर जेट्स हैं उन्हें खोती जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले ईयर ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट TED-BF करके। तो इसके अंदर है कि जो रेडार है वो हमारा लगेगा, उत्तम AES रेडार, और साथ ही साथ जो इसका इसका भी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F414 लगेगा। तो इसमें जो ये थी कि पुअर परफॉर्मेंस थी MiG-29 के तो उसके उसके लिए इसलिए चेंज कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि अभी इंडियन नेवी को अभी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंड्यूस करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर जेट है दूसरे में होंगे नहीं, तो वरना ये ऐसा हो जाएगा कि वो जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है बिना दांत के शार्क वाली बात हो जाएगी उसमें। तो इसलिए उधर के फाइटर जेट्स के लिए भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और उन्होंने रखा है कि 2032 तक इसकी वो हो जानी चाहिए इंडक्शन इंडियन नेवी में। तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 तक हो जाएगी। और दूसरा है इसमें भी जो इंजन अभी जनरल इलेक्ट्रिक का लगेगा वो आगे जाके इंडियन इंजन से रिप्लेस हो जाएगा। और जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी के लिए वो
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है हमारा, AMCA करके कहते हैं। जैसे अमेरिका के पास अपना F-22 रैप्टर है, और वो रशिया के पास अपना सुखोई Su-57 है, और चाइना के पास सो कॉल J-20 है। तो उससे बेहतरीन जो हम जेट बना रहे हैं AMCA करके है। तो उसके अंदर जो इंजन है, अभी उसकी पहली जो 2 स्क्वाड्रन होंगी, मतलब इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इमेजिन की जा रही है कि 2025 तक हो जाएगी, और इसका जो इंडक्शन है वो 2030 तक हो जाएगा। तो इसकी जो पहली 2 स्क्वाड्रन है, यानी कि एक स्क्वाड्रन में होते हैं 18 to 20 जेट्स, तो इसकी पहली 2 स्क्वाड्रन के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगेगा, पर इसे बाद में इंडियन इंजन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, और बाकी सारा रेडार होगा, स्टेल्थ होगा, वो सारी अपनी इंडियन चीजें होंगी। और मतलब इस इंजन की दिक्कत है, बाकी सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी। अभी मेजर जो दिक्कत आ रही है वो इंजन की है, और इंजन के लिए जो हमारी जितनी भी DRDO हो गई, और भी गवर्नमेंट फर्म्स है, वो यूके की एक तो रॉल्स रॉयस कंपनी और फ्रांस की सैफरन कंपनी, इन दोनों के थ्रू ना जॉइंट वेंचर पे काम कर रही है, ताकि वो दोनों हम लोग मिलके एक 110+ किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन बना सके, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो, ताकि फिर आगे आते आते तेजस मार्क 2, TED-BF, AMCA, और AMCA का जो मार्क 2 वेरिएंट आएगा, जो कि 2034 में जिसकी फर्स्ट फ्लाइट इमेजिन की जा रही है, उसके अंदर भी लग जाएगा। तो ये था। और अभी लेटेस्ट ये चल रहा है कि एक इजराइल के थ्रू हमने अभी बात चल रही है उस पर, कि एथॉस की जो आर्टिलरी गन है, एक एथॉस, तो आर्टिलरी को बुक करने की है, वो 400 आर्टिलरी है। तो इजराइल और फ्रांस के बीच में कंपटीशन था, जिसे इजराइल जीत चुका है बिल्कुल ही, क्योंकि उसने 400 मिलियन प्लस यूरोस का वो रखा है बिट, और वो फ्रांस ने रखा है 700+ मिलियन यूरोस का। तो इसमें यह है कि इजराइल ने वादा किया है कि जो इसके अंदर अब कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम इंडिजिनाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम किसी किसी कंट्री से भी कुछ लेते हैं, तो होता ये है कि अगर हम बाहर से भी लेंगे, तो हमें ये कह रहे हैं कि उनसे 70% जो उसके अंदर पार्ट्स हो वो इंडियन हो। तो इसलिए उसने इजराइल ने वादा किया है कि आप जो 400 हमसे आर्टिलरी लेंगे, एक्चुअली हमारा टारगेट 1000+ का है आर्टिलरीज का, लेकिन हम 400 वैसे ले रहे हैं, और बाकी सारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू 100% इजराइल ने कहा है कि अभी जो 70% है उससे भी ज्यादा करके आपको देंगे। और जो डिलीवरी टाइम था वो 72 वीक्स का था, उन्होंने बोला मुझे 20 वीक्स और कम करके 52 वीक्स में कर देंगे 400 आर्टिलरी की डिलीवरी। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जो जब पूरी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद वो 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर कर देंगे, तो बाकी जो हम 1000 जो आर्टिलरी की हमारा प्लान है वो सारी हम खुद ही इंडिया में बना पाएंगे। ये है। और एक लेटेस्ट ये है कि अभी हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करी है टैंक्स के लिए, वो 1770 टैंक्स के लिए है, और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकेशंस ये रखी है कि वो अपकमिंग वो डेंजर को भी एनालाइज कर पाए। मतलब मान लीजिए कि टैंक है, उस पर कोई ड्रोन या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, वो नजर रख रहा है, तो उसे भी पहचान पाए। उसके साथ साथ वो हमें मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता पाए कि आप ये कर सकते हैं, इसके लिए मतलब आपके पास वो होगा, स्टेप्स की सजेस्ट करेगा हमें कि आप ये कर सकते हो इस सिचुएशन में, और खुद से स्टेप्स ले भी पाएगा, ये भी है। और इसके अंदर ये भी है कि उसके अंदर अभी हम लेजर लगाने की भी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इतना ही बताना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू माहिर, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स ने जो है ना बहुत अच्छा जो है ना क्या नाम है सेशन दिया, हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे आशीष ने एक्सप्लेन किया, इधर से अपना माहिर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे डिफेंस सेक्टर में अभी हम डिपेंडेंट हैं, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, रशिया के ऊपर डिपेंड है, इजराइल के ऊपर डिपेंड है, फ्रांस के ऊपर डिपेंड है। तो आने वाले 5 साल में या 10 साल में हम बिल्कुल इंडिजिनस हो जाएंगे, सो दैट वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, वी विल मेक आवर ओन वेपन्स। एंड जैसा कि 5G अभी आ रहा है यहाँ पर, तो 5G आने के बाद, और जैसा कि 70% कंपोनेंट्स, 70% जो हमारा होगा खुद का होगा इंडिजिनस। हालांकि अभी भी हमारी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, और हमें 30% बाहर से टेक्नोलॉजी हमें परचेज करनी होगी या पार्ट्स परचेज करने होंगे। तो ये एक अच्छी जो है नॉलेज उन्होंने बताई है। और सिमिलरली जैसे कि आशीष गोयल ने बताया मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में, कि कैसे जो है हम अर्थक्वेक से हम अपनी बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग अर्थ के कांटेक्ट में ना आए, हमारी जो बिल्डिंग है अगर कांटेक्ट ही ना हो, तो हमारा डेफिनेटली जो है ना हमारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसका ये भी अभी एक रिसर्च चल रही है कि जो हैंग कर रही है बिल्डिंग, उसकी लेटरल डिफ्लेक्शन हो सकती है, वो गिर सकती है, तो उसको कैसे बचाया जाए, तो उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। और मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था, जापान में जो है ना अभी भी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं।
तो वो ट्राई कर रहे हैं मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाए ताकि बिल्डिंग कांटेक्ट में ना आए और अर्थक्वेक से बचाया जा सके। तो ये आज दो हमें इम्पोर्टेंट जो है ना क्या नाम है इंफॉर्मेशन मिली हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्पस यहाँ पर सिर्फ यही है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा डीप नॉलेज कई बार स्टूडेंट्स को नहीं होती है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि उतनी नॉलेज नहीं होगी, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कन्वे किया। दूसरा पर्पस क्या है यहाँ पर, एक पहला पर्पस तो ये हो गया कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता लगी, जैसे कि आज हमें दो टेक्नोलॉजी पता लगी। अगर हमें इसी तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पता लगती रहे तो हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें क्या करना है, अगर कोई रिसर्च भी करना चाहता है या कोई फील्ड में जाना चाहता है। तो आज दो टेक्नोलॉजी पता लगी, मैग्नेटिक लेविटेशन और डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो पहले तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको पता लग रही है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पता लग रही है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। तो हमारा यहाँ पर पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता लग गई, यहाँ पर्पस ये भी है कि बच्चा जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सके, है ना। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ज्यादातर देखा है कि बच्चा अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए अपने आप को प्रेजेंट करना सीख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, राइट, कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि अभी जो है ना क्या नाम है माहिर ने बताया, बहुत अच्छा बोला, आशीष ने बोला, तो ऐसे ही दो चार बार इस तरह से आप भी प्रेजेंट देंगे, हर स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा, तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आपका लाइफ में काम आएगा, क्योंकि आगे आपको इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, आपको लोगों से टॉक करना है, लोगों से बात करनी है, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। इंटरव्यू में भी जाएंगे तो प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को, ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो पर्पस है, सेकंड पर्पस यहाँ पर वो प्रेजेंट करने का है कि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस ला सके। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम और बच्चे आगे आएंगे और अपनी नॉलेज शेयर करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, फैकल्टी के साथ।